Sure. Okay, so hello everyone. Welcome to the first session of the Test Automation Carnival, which is the second episode of the Engineering Excellence series. So first, to set some ground rules about this and all of the following sessions, I would request all of you to please keep your mics muted throughout the presentation. And at the end of the presentations, we're going to open a Q&A segment in which you can ask your questions that you had during the presentations. But if you have any questions while the presenters are presenting, please use the Teams chat for that, which would save a lot of time for the presenters to wrap up the session within the time. All right, so let's quickly move to today's session by Suhail Mohabbat Ali and Atif Riaz. They will be covering the basics of testing and their types to set the grounds for this event. Okay, so over to you, Suhail. Before the team takes up, I just want to share a couple of comments. So I'm very excited. The event has started. Finally, we were doing work and getting ready to launch this for over 2 months now. It's especially exciting for me because TE and TSA have collaborated and 4 architects have played a role. Unfortunately, one moved to US, but still I think 5 architects will be presenting or their teams will be to are doing today. It's a lot of background effort has gone into this. We are all working from home, although I'm off. I and a few other people are in office, but most of us are working from home. And it was important for us to rebuild the momentum of knowledge sessions while we were doing a work from home or in soon a hybrid model. So a lot of background effort from Tajalle, Umair, for example, has gone into it, and multiple architects have reviewed the presentation. Umair, for example, our VP of technology, our senior most engineer, is reviewing the slides and giving a lot of feedback to presenters as well. And me and Umair were having a chat, and we both thought that test automation is going to be the future where it is actually like present in a lot of Silicon Valley and top-notch companies, and it's it's up to us how soon we reach with that future for us, where our dev are very hands-on with unit testing, and our testers are mostly relying on test automation for end-to-end testing, functional testing, integration testing, load penetration. So I think these sessions are very important for us as a company and for all of us as individuals and part of engineering team. So I'm excited, and I hope that we have like currently 60 people in the session today, and I hope we keep seeing this same number of teams in all the future sessions. So thanks and good luck. थैंक यू एहसन। तो फॉर्मली जो है वो हमारा इवेंट स्टार्ट हो चुका है। तो ये अपनी नेचर का एक फर्स्ट इवेंट है जो कि मोस्टली लोग जो है वो अपने घरों से अटेंड कर रहे हैं। तो आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वो मुझे जो है यानी कि एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है कि हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। और अभी सेशन से पहले जो है वो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि ना सेशन में आने से पहले मैंने अपने घर वालों का सबका वाईफाई बंद कर दिया है ताकि ना हम अच्छे तरीके से जो है वो इस सेशन को जो है वो प्रोसीड कर सकें। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो एहसन भाई ने आपको जो है वो बताया कि टेस्टिंग कार्निवल में का जो इसके पीछे हमारे जो 2 एजेंडा पॉइंट्स थे वो ये थे कि एक तो हमारी जो टेस्ट इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उसमें डिफरेंट डेफिनेशंस के ऊपर एक कंसेंसस बन जाए, और दूसरी चीज़ ये कि इंडस्ट्री में जो नॉन ऑटोमेशन टूल्स हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ जो है वो हम यूज टू होना स्टार्ट हो जाएं। तो जो इस एजेंडा पॉइंट्स में से जो फर्स्ट एजेंडा पॉइंट्स है डेफिनेशंस का, आज का सेशन जो है वो उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेगा। और इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है, डेफिनेशंस के ऊपर अलाइनमेंट लाने की या कंसेंसस बिल्ड करने की रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये है कि आप इंटरनेट से डिफरेंट लिटरेचर जो है वो कोई भी रैंडम लिटरेचर आप उठाएं तो हर दूसरा लिटरेचर जो है वो
पहले से जो है वो डिफरेंट होगा। टेस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी टेस्टिंग टाइप्स हैं, लेवल्स हैं, उनके अंदर जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें इतने कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉरी कंफ्यूजिंग नहीं मैं कहूँगा इसको मैं कहूँगा कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कि कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेट्स से स्मोक के बारे में डिफरेंट है, कुछ लोगों की सैनिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। और इसी तरह टेस्टिंग लेवल्स वाली साइड पे आ जाएं तो कुछ लोग जो है वो यूनिट टेस्टिंग जो है उसमें लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लैश होता है कि यूनिट टेस्टिंग में हम किस पार्ट को हम यूनिट बोल रहे होंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाली साइड पे जाते हैं तो इंटीग्रेशन टेस्ट वाली साइड पर भी जो है ना वो काफ़ी एक डिबेट स्टार्ट होती है कि कहाँ पर कौन सी टेस्टिंग करनी है, कौन सा वाला जो टेस्ट है वो इंटीग्रेशन टेस्ट में आएगा नहीं आएगा। तो ये वाली कन्फ्यूजन जो है वो ऑलरेडी जो है वो इंडस्ट्री में अवेलेबल है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो हम एक एफर्ट करना चाह रहे थे कि एटलीस्ट हम सभी को तो नहीं तो जितने हम मैक्सिमम लोगों को एक कंसेंसस के ऊपर जो है वो ला सकते हैं वो हम ले आए। सिमिलर सेशन जो है वो टी के जो हमारे जो मोस्टली जो सीनियर मेंबर्स हैं वो इस तरह के सिमिलर सेशन कर चुके हैं जिसमें हर सेशन में जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर बिल्ड हो जाती है। तो जब मैं ये सेशन प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने जितने भी पास में सेशंस हुए हैं उनको भी रेफ़र किया था और वो मैं एक ट्रेंड देख रहा था कि हर सेशन होने के बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो एक चीज़ जो है वो अभी क्विकली जो है वो सेशन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले मैं एक कमेंट देना चाहूँगा कि जो हम डेफिनेशंस के ऊपर जो कंसेंसस बिल्ड करने की बात कर रहे हैं उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लोग गलत टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कॉन्फिस के प्रोसेसेस वगैरह को देखें और वे ऑफ टेस्टिंग देखें लोगों का तो बिल्कुल जो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि 80-90% जो है उन चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? लेबलिंग के ऊपर, कि आप कौन से टाइम पर कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और उसको आप कौन सा लेबल देंगे। और पास में भी जो सेशंस हुए हैं उसमें भी जो है वो इसी तरह की डिबेट चलती रही है कि ठीक है हर बंदा टेस्टिंग ठीक कर रहा है मगर उसको लेबल कौन सा देना है। तो और उसके अलावा पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमारे पास दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एक हमारे पास डेव डिपार्टमेंट है और दूसरा हमारे पास टेस्ट इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। अभी जो है अभी हमारी जो मोटिवेशन है वो यही है कि हम टेस्ट इंजीनियरिंग के मोस्टली लोगों को जो है वो ऑटोमेशन वाली साइड पर लेकर जाएं। मगर इनिशियली अभी जो है ना वो फोकस इस तरह से है कि जो टेस्ट इंजीनियरिंग वाली कम्युनिटी है, ठीक है, उनका फोकस जो है वो टेस्टिंग मेथड्स के ऊपर है कि स्मोक किस तरह से होगी, सैनिटी किस तरह से होगी, रिग्रेशन किस चीज़ को बोलते हैं। और जो इंजीनियरिंग साइड है उनका फोकस जो है वो दूसरी साइड पे है कि यूनिट टेस्ट किस तरह से लिखे जाएंगे, कौन सा पार्ट इंटीग्रेशन टेस्ट में आएगा, सिस्टम टेस्टिंग क्या होगी, ठीक है। ऑल्दो कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके लेवल्स और आपके जो टाइप्स वगैरह हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। तो आज हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे जिसमें तो चीज़ों को जो है वो एक सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशर एक लेंगे डिफरेंट डेफिनेशंस का। तो क्विकली एजेंडा की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन देखेंगे। वो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसके ऊपर मोस्टली लोगों का कंसेंसस है। फिर उसके बाद एक जो हमारे पास जो टेस्टिंग टाइप्स आती हैं, टेस्टिंग टाइप जो है ये वो वाला पोर्शन है जिस पर हमारी टेस्ट इंजीनियरिंग जो है उनका ज़्यादा फोकस है। तो आई एम होपिंग कि ज़्यादा क्वेश्चंस भी जो हैं वो उन्हीं की साइड से आ रहे होंगे। फिर उसके अलावा टेस्टिंग मेथड्स हैं, ठीक है, ये सिंपल है, इस पे लोगों का ज़्यादातर कंसेंसस है। फिर उसके अलावा जो टेस्टिंग लेवल्स हैं उसमें हम जो है वो यूनिट टेस्टिंग और इस तरह के जो इंटीग्रेशन टेस्ट वगैरह जो हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। और लास्ट में जो है वो एक टेस्टिंग क्वाड्रेंट्स जो कि एजाइल टेस्टिंग में जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है डिफरेंट टेस्ट केसेस को देखने का, उसको जो है वो हम क्विकली देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन को देखें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन जो है वो आपको सिंपल ये बोलती है कि आपके डिफरेंसेस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस, कि आपके पास जो करंट सॉफ्टवेयर जो आपके पास डेवलप होके आया है उसकी कंडीशन और जो कि आप
आपको कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट मिली थी उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो कहलाता है। अब क्विकली जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स की तरफ जंप करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप जो है इसमें हमारे पास जो है वो हम जिन जिन टाइप्स को डिस्कस करेंगे वो है स्मोक, फंक्शनल रिग्रेशन, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस। अच्छा, यहाँ पर जो है बहुत सी ऐसी टाइप्स हैं जो कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन में उन टर्मिनोलॉजीज को यूज़ भी करते हैं, ठीक है। जिस तरह कि यहाँ पर आपको सैनिटी का वर्ड जो है वो नहीं नज़र आ रहा होगा, सैनिटी टेस्टिंग का। अब 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 क्योंकि इंटरनेट पर मल्टीपल लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, तो अब ये भी एक चैलेंज था कि कौन से लिटरेचर को हम जो है वो अपना सोर्स कंसिडर करें। तो उस चीज़ के लिए अगेन जो है वो टेस्ट इंजीनियरिंग से ही रेफ़र किया गया और उनके मल्टीपल सीनियर मेंबर्स से जो है वो हमने ये पूछा कि कौन सी जो है आप सोर्स को जो है वो आप जो है वो रेफ़र करते हैं ज़्यादा कम्युनिटी लेवल के ऊपर। और उसके अलावा कुछ और भी कुछ सीनियर मेंबर्स कॉन्फ्रेंस में जो है जो कि टेस्ट इंजीनियरिंग वगैरह को उनको जो लीड कर रहे हैं, वो भी जो है उनका उनका जिन सोर्सेज के ऊपर कंसेंसस था, तो ये इस स्लाइड का जो जो कंटेंट है वो वहाँ से लिया गया। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है, कुछ लोगों की लेबलिंग वाली चीज़ लोग कह सकते हैं कि नहीं, आप जिस चीज़ को मे बी रिग्रेशन बोल रहे हैं मैं उसको सैनिटी बोल रहा हूँ। तो अगेन बात वही है कि हम काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये सिर्फ वही है कि हमने लेबल कहाँ पर पुट करना है। तो मूव करते हैं हम सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग के ऊपर। अच्छा, स्मोक टेस्टिंग जो है इसके ऊपर भी मोस्टली लोगों का कंसेंसस है कि स्मोक टेस्टिंग जो है वो आपकी वो फर्स्ट टेस्टिंग है जो कि परफॉर्म होती है जब आपके पास कोई भी बिल्ड जो है वो रिसीव होती है, ठीक है। इसको हम बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप ये कह रहे होते हैं कि जैसे ही आपके पास बिल्ड रिसीव हुई है तो आप जो कॉमन सिनेरियोज हैं, जो जो इम्पोर्टेंट आपके फंक्शनल सिनेरियोज हैं, ठीक है, आप उनको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपकी कहीं मेजर फंक्शनैलिटी तो ब्रेक नहीं करेगी। लेट्स से आपकी मेजर फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, आपका लॉगिन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके सिस्टम में कोई लेट्स से परचेजिंग वगैरह होती है या कुछ इस तरह के आपके इंपॉर्टेंट फंक्शनल सिनेरियोज हैं, आप उनको जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। अब जो स्मोक टेस्टिंग है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है? उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हार्डवेयर टेस्टिंग से निकला है कि जब आपके पास कोई हार्डवेयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले उसका टेस्ट क्या होता है कि उसको प्लग इन करके चेक किया जाता है कि कहीं ये स्मोक तो नहीं कर गया, ठीक है। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या आप हमारी जो बिल्ड है वो टेस्टेबल भी है भी कि नहीं। और उसके अलावा इसमें हम इन डेप्थ बिल्कुल नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ और सिर्फ जो मेजर सिनेरियोज हैं उनको जो है वो देख रहे होते हैं कि जो आपके बिजनेस क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं उनको चेक कर रहे होते हैं कि ये जो है वो वर्किंग कंडीशन में हैं कि नहीं। उसके अलावा स्मोक जो है, क्योंकि मोस्टली लोगों का कहना ये है कि स्मोक जो है वो एक डॉक्यूमेंटेड टेस्टिंग है, तो इस वजह से ये दोनों टाइप की हो सकती है। ऐसी चीज़ जो कि हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं हम उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्मोक टेस्टिंग है वो हमारी मैनुअल भी हो सकती है और उसके अलावा हम इसको ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये स्मोक टेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गेट है आपका, ठीक है, तो मोस्टली लोगों का जो है कहना ये है कि आपके जैसे जैसे आपका सॉफ्टवेयर मैच्योर होता जाता है, ठीक है, आपकी सॉफ्टवेयर जो आपकी स्मोक टेस्टिंग है वो एक्सपेंसिव होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये कि आपके पास जो आपका फर्स्ट गेट है, ठीक है, वो ही इस तरह का हो कि आपके पास जो मेजर इश्यूज हैं वो आगे ना जा रहे हों, ठीक है। ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम से भी बचाती है ये चीज़ आपको, कि आपने मेजर केसेस को चेक कर लिया, अगर वहीं से अगर आपकी कोई चीज़ आपकी ब्रेक कर रही है तो आप यहीं से आप अपनी बिल्ड जो है वो आप रिजेक्ट कर देते हैं कि पहले ये चीज़ फिक्स होगी और फिर उसके बाद जो है वो हम फर्दर जो है वो टेस्टिंग से प्रोसीड करेंगे। क्विकली अगर इसकी डायग्राम को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है इनिशियल बिल्ड्स का, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम वापस आएंगे जब हम थोड़ा हम सैनिटी की डिस्कशन करेंगे जो कि इन स्लाइड्स में अभी कवर नहीं हो रही। तो अगेन हम फिर इस चीज़ को जो इनिशियल बिल्ड का जो है वो मीनिंग देखेंगे कि यहाँ पर इनिशियल बिल्ड का मीनिंग क्या है।
तो इसका अगर हम एक फ्लो चार्ट अगर देखें तो हमारे पास कुछ बिल्ड रिसीव हुई हैं, कुछ इनिशियल बिल्ड्स हैं, ठीक है, वो रिसीव होती हैं, उस पर स्मोक जो है वो परफॉर्म होती है। अगर आपकी पास नहीं होती तो वहीं से बिल्ड रिजेक्ट हो जाती है। अदरवाइज फर्दर जो है वो आप उसके ऊपर फंक्शनल टेस्टिंग और फिर रिग्रेशन और उसके बाद फर्दर टेस्टिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा जो है वो इसको टेस्टिंग लेवल्स के साथ जो है कोरिलेट करने के लिए यहाँ पर जो है मैंने लिस्ट किया हुआ है कि कौन सी जो है टेस्टिंग लेवल्स के साथ ये मैप हो रही होती है, ठीक है। तो लेवल्स को अभी हम डिटेल में आते हमें एक्सप्लेन करेंगे कि टेस्टिंग लेवल्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए जो है सिर्फ इसकी कैटेगराइजेशन देख लेते हैं कि स्मोक टेस्टिंग जो है वो इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जो है वो फॉल करती है। तो ये होगी हमारी स्मोक टेस्टिंग के जैसे ही आपकी बिल्ड मिली है उसके ऊपर फर्स्ट जो है वो आपकी जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है वो स्मोक टेस्टिंग है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे पास जो स्टेप आता है वो आता है हमारे पास फंक्शनल टेस्टिंग का। फंक्शनल टेस्टिंग जो है ये आपकी जो है वो आपकी टेस्टिंग है जिसमें आप एक्चुअल जो टेस्ट केसेस हैं जो कि आपकी जो बिजनेस स्पेसिफिकेशन से आपने लिखे हुए हैं उसके साथ अपने जो है ना सॉफ्टवेयर को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आपकी स्मोक परफॉर्म होगी तो फिर आप फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं उस स्पेसिफिक एरिया की जिसमें आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है। इसमें जो है वो टेस्ट इंजीनियरिंग के कुछ लोगों से मेरी डिस्कशन हुई तो वो इसको जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज में इसको फीचर टेस्टिंग भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि एक फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एक ब्रॉडर टर्म भी है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को जो है वो कंफ्यूज ना करने के लिए इसको फीचर टेस्टिंग का नाम भी दे देते हैं। बट यहाँ पर जो है हम फीचर टेस्टिंग हम उसको बोल रहे हैं कि आप एक स्पेसिफिक फीचर से रिलेटेड जो आपकी रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस के अगेंस्ट जो आपके टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, वो आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, फंक्शनल टेस्टिंग से रिलेटेड जो है वो एक गाइडलाइन ये है कि अगर आपकी ये जो है फंक्शनल टेस्ट केसेस जो हैं ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के थ्रू से अगर ड्राइव हों उसके साथ लिखे जाएं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। कि आपको ये पता जो है आपका इस चीज़ पे फोकस हो कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, आपका एंड यूज़र क्या चाहता है, ठीक है। और एक जो है नॉट टू डू वाला जो सेक्शन आता है उसमें ये आता है कि आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं उससे आपको फंक्शनल टेस्टिंग जो है ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो प्योरली जो आपकी फंक्शनल टेस्टिंग है वो आपकी ड्राइव होनी चाहिए कि आपके जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, ठीक है, और जो यूज़र की तरफ जो आपका क्लाइंट है उसकी तरफ से जो स्पेसिफिकेशन आई है। तो हमारे पास जो है लेवल्स पे अगर इसको मैप करें तो सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो इसमें ये मैप होता है। क्विकली वापस आते हैं, ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर कि हमारे पास जो है इनिशियल बिल्ड आई, उसके ऊपर हमने स्मोक परफॉर्म की, रिजेक्ट हुई तो वो बिल्ड वापस चली गई है। अदरवाइज जो है वो हमने उसके ऊपर अगर हमारे पास स्मोक पास हो गई है तो फर्दर हमने उसके ऊपर जो है वो क्या किया है, हमने अब फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो एग्जीक्यूट कर दी है, ठीक हो गया। अब फंक्शनल टेस्टिंग जो है उसमें हमने जो एरिया चेंज होकर आया था हमने उसको टेस्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब अगर आपकी इसमें कुछ बग्स वगैरह आते हैं तो वो अगेन जो है वो आपकी बिल्ड जो है वो वापस चली जाएंगी, ठीक है, और वो जब फिक्स होकर वापस आएंगी तो अगेन ये साइकिल इस तरह से चलेगा। अब लेट्स से जिस एरिया में जो हम चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो नहीं हमारे जो फीचर है वो बिल्कुल उसकी टेस्टिंग जो है वो हमारे पास क्लियर हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो जाती है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपकी जो फंक्शनल टेस्टिंग है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करती है जिसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। अब रिग्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड भी लोगों के जो है वो ओपिनियन थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हम जिन सोर्सेज को जो है वो रेफर कर रहे हैं उसमें जो है रिग्रेशन टेस्टिंग वो उस पार्ट को बोलते हैं कि जिसमें आप सॉफ्टवेयर के अनचेंज्ड एरियाज जो हैं आप उनको भी टेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरह की सिमिलर जो है वो प्रेजेंटेशन पहले भी जिसमें हुई थी तो उसमें भी एक आध क्वेश्चन कुछ इस तरह के आए थे कि ठीक है जो जिस एरिया में चेंज हो रहा है आपने उसको तो टेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब ऐसा कोड जो कि प्रीवियसली जो है वो आपका चेंज हो चुका है आपकी प्रीवियस बिल्ड्स में, जो कि जिसको हम स्टेबल कोड कह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग कब होगी, ठीक है। तो फंक्शनल टेस्टिंग के बाद जो फर्दर स्टेप रिग्रेशन का आता है
ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारे प्रीवियसली जितने भी हमारी रिलीजेस गई होती हैं उनके जो है वो टेस्ट केसेस वगैरह एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, इस रिग्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड जो है वो हम नए टेस्ट केसेस तो नहीं लिख रहे होते, जो प्रीवियसली रिटन टेस्ट केसेस होते हैं उन्हीं को रीरन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब रिग्रेशन जो है इसमें अब फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं, ठीक है। रीटेस्ट ऑल, रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन और प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेस्ट केसेस। इन आइडियल सिनेरियोज ये चीज़ जो है कही जाती है कि आपके पास जब भी बिल्ड आई है ना उसको आप रीटेस्ट करें, कि आपके प्रीवियसली जितने भी लेट से आपके पास कोई 500 जो है वो टेस्ट केसेस पड़े हुए हैं तो वो आप सारे के सारे एग्जीक्यूट करते हैं। मगर ये चीज़ जो है ये इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज ये पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हुए जो है वो हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट टेक्निक्स की तरफ जाते हैं कि हम या तो जो है वो जो सिलेक्टेड टेस्ट केसेस जो हैं, ठीक है, उनको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब सिलेक्टेड, इसमें सिलेक्शन किस तरह से होती है, वो सिलेक्शन इम्पैक्ट एरिया की बेस के ऊपर होती है कि हम कहते हैं कि अच्छा ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये चेंज हुआ है इसमें, तो इसमें इसका जो ये इम्पैक्ट एरिया है इसमें मैक्सिमम जो है वो इस एरियाज में जो है वो इशू हो सकता है, तो हम इस एरिया को टेस्ट कर लेते हैं। एक ये वाली मेथोडोलॉजी जी फॉलो होती है, और दूसरी जो है वो प्रायोरिटाइजेशन होती है। प्रायोरिटाइजेशन में क्या है कि आपके जितने भी प्रीवियस टेस्ट केसेस हैं आप उसको जो है वो जो है मीडियम हाई लो में जो है आप उनमें डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और जितना आपको टाइम परमिट करता है उसके लिहाज से जो आपके जो जो हाई हाई प्रायोरिटी पर जो आपके टेस्ट केसेस होते हैं आप उनको जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। ये चीज़ होगी। और उसके बाद अगर लेवल्स पर इसको मैप करें तो यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो इसमें जो है ये हमारे मैप करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से अब रिग्रेशन के डिस्कशन के बाद जो है ना वो हम वापस थोड़ा सा इस स्लाइड पे वापस आते हैं, और जोन सी टेस्टिंग जो कि जिसमें काफ़ी हमें एक वर्ड ना कॉन्फ्रेंस में भी टेस्टिंग में सुनने को मिलता है, सैनिटी टेस्टिंग, ठीक है। वो अभी हमें इस पिक्चर में कहीं पे नज़र नहीं आई अभी तक जो है। अगर मैं लेबल की बात करूं तो हमारा जो कॉन्फ्रेंस में जो सैनिटी है ना उसको लेबल एक डिफरेंट जगह पर जो है वो प्लेस किया जाता है, ठीक है। और जिन लिटरेचर्स को हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सैनिटी टेस्टिंग जो है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग को बोला जाता है, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है, ठीक है। मोस्टली लोग जो हैं वो स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग को जो है ना वो सिमिलर टेस्टिंग कंसिडर कर रहे होते हैं विद अ माइनर डिफरेंस। अब वो माइनर डिफरेंस क्या है कि उन लोगों का कहना ये है कि आपके पास जैसे ही बिल्ड रिसीव हुई है तो बिल्ड रिसीव होने के बाद जो पहली आपकी टेस्टिंग परफॉर्म होगी वो या तो स्मोक होगी, ठीक है, या फिर अगर आप स्मोक नहीं तो इस पॉइंट के ऊपर आप जो है वो सैनिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे इसके पैरेलल में, ठीक हो गया। अब किस टाइम पे हम स्मोक परफॉर्म करेंगे और किस टाइम पे हम सैनिटी परफॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास अनस्टेबल बिल्ड है, ठीक है, यानी कि इनिशियल बिल्ड्स चल रही हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी एक बात कही थी कि इनिशियल बिल्ड्स हैं हमारे पास जो कि मोर प्रोन टू बग्स हैं, तो उन केसेस में हम स्मोक परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। और आपकी रिलेटिवली जो स्टेबल बिल्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें लेट्स से आपके बहुत से जो है वो जिसमें आप कह लेंगे जो टेस्ट इंजीनियर है उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया हुआ है कि ये बिल्ड थोड़ी स्टेबल हो गई हुई है, तो उस केस में जो है वो हम जो है वो अपने टाइम को सेव करने के लिए ये नहीं करते कि हम जितना भी हमारा जो स्मोक के हमें हमारे टेस्ट केसेस हैं हम उसको जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें, हम उसकी जगह पर सैनिटी परफॉर्म करते हैं। और सैनिटी के बारे में जो है वो मोस्टली लोगों की राय ये है कि सैनिटी एक अनस्क्रिप्टेड टेस्टिंग होती है जिसकी वजह से ये ऑटोमेट भी नहीं हो सकती, ठीक है। और सैनिटी में जो है उसमें क्या होगा कि जोन सा आपके एरिया में जो आपकी लास्ट बिल्ड में किसी में कुछ बग वगैरह आए थे आप उसके अराउंड जो है ना वो रैंडमली चीज़ें टेस्ट कर रहे होते हो जस्ट आपकी एक यानी कि कुछ बिल्ड का रैशनल चेक करने के लिए। तो स्मोक और अगर सैनिटी में डिफरेंस जो है वो अगर देखा जाए तो इसमें जो स्मोक है वो आपका जनरल हेल्थ चेक है और जो आपका सैनिटी है वो आपका स्पेशलाइज्ड जो है वो हेल्थ चेक है। तो आई एम श्योर कि इससे रिलेटेड आप इस फ्लो से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन होंगे जिसको हम क्यू एन ए सेशन में जो है वो हम एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो हमारे पास यूजेबिलिटी टेस्टिंग आती है जिसमें हम
हम एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से जो है वो सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या हमारा सिस्टम यूजेबल भी है कि नहीं। ठीक है, यूजेबल से मुराद जो है वो हमारी ये है कि लेट्स से अगर जिस तरह हमारे पास असिस्टेंट लॉगिन होता है कि एक बार आप लॉगिन करते हैं आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता, जैसा फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, आप एक बार लॉगिन करते हैं तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास लॉगिन रहता है, आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता। लेट्स अज्यूम कि आपको कभी भी आपको एक पेपर का प्रिंट करने के लिए आपको जो है सारी की सारी प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करनी पड़ रही हैं, ठीक है, तो वो आपका सिस्टम जो है वो कुछ इतना यूजेबल नहीं है। ठीक है, तो एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से जो है सिस्टम को टेस्ट करना कि आपका सिस्टम कितना इजी टू यूज़ है, ठीक है, इसमें ये हमारा यूजेबिलिटी टेस्टिंग में आता है। और इसमें हमारे पास जो है वो परसिस्टेंस लॉगिंग की एग्जांपल आ गई, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ कार्ट आइटम आ गया कि लेट से आप शॉपिंग कर रहे हैं किसी पोर्टल के ऊपर और लेट से आपका अब ब्राउज़र जो है ब्राउज़र का टैब आपका बंद हो जाता है, आप दोबारा रीओपन करते हैं तो आपकी जितने भी जो आपकी जो कार्ट आइटम्स थी अगर गायब हो जाती हैं, ठीक है, आपको नए सिरे से सारी जो है वो आइटम्स को ऐड करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका सिस्टम जो है वो यूजेबल नहीं है। ठीक है, लेवल्स की बात करें तो उसमें सिस्टम और एक्सेप्टेंस वाले जो कैटेगरी है इसमें हमारी यूजेबिलिटी टेस्टिंग आ रही होती है। उसके बाद फर्दर हमारे पास टाइप जो है वो हमारी सिक्योरिटी टेस्टिंग है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम अपने सिस्टम को डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे होते हैं किसी पॉसिबल इंट्रूडर के लिए कि हमारा सिस्टम जो है वो किसी साइड से ब्रेक तो नहीं हो सकता। फोकस एरियाज की बात करें तो हमारे पास 4 डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं: नेटवर्क, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, सर्वर साइड एप्लीकेशन। नेटवर्क में हम हमारा जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि नेटवर्क के ऊपर कुछ पैकेट्स स्पूफिंग वगैरह तो नहीं हो रही या कुछ जो है आपका जो कम्युनिकेशन हो रही है वो उसका चैनल सिक्योर है कि नहीं। तो जब हम नेटवर्क एरिया को फोकस कर रहे होते हैं तो वो हमारा नेटवर्क के टेस्टिंग में आ जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोकस एरिया है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे ओएस आ जाते हैं कि लेट से आपका जो ओएस है वो आपका लेटेस्ट है कि नहीं, आपका जो ओएस है उसमें जो कर्नल है उसकी आपने लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस वगैरह वो आपने अप्लाई किए हुए हैं कि नहीं किए हुए। उसके अलावा डेटाबेसेस के डिफरेंट वर्जन आ जाते हैं, माइनर आपके पास जो सिक्योरिटी पैचेस वगैरह आ रहे होते हैं वो जो है वो अप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए। क्या वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या वो एक प्रॉपर किसी प्राइवेट सबनेट में पड़े हुए हैं, कहीं वो पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, उसकी पोर्ट्स जो हैं वो सब जगह से अवेलेबल तो नहीं है। तो जो सेकंड फोकस है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ होता है। और थर्ड जो है वो हमारा क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम ब्राउजर्स और इस तरह के टूल्स वगैरह को देख रहे होते हैं कि वो आपके जो है वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ब्रीच ना हो और या वहाँ से कोई किसी अटैक वगैरह जो है वो ना किया जा सके। उसके बाद सर्वर साइड एप्लीकेशंस हैं। सर्वर साइड एप्लीकेशंस में हमारे पास वेब सर्वर्स वगैरह आ जाते हैं कि जिस तरह अपाची है, अपाची के जो है वो अक्सर जो है इसकी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं जिसके अंदर कुछ नॉन वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं उनको फिक्स किया जाता है। तो सर्वर साइड जो फोर्थ फोकस है हमारा जो है वो सर्वर साइड के जो हैं एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर होता है। और इसकी अगर गाइडलाइंस की बात करें तो ओवास्प जो है वो वन ऑफ द गाइडलाइन है क्योंकि एक काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड गाइडलाइन है जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट सिक्योरिटी वाले पॉइंट्स जो हैं वो उनको एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास टाइप आती है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। परफॉर्मेंस में जो है वो हम अपने सिस्टम को किसी सर्टन लोड के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम जो है एक स्पेसिफिक लोड के अगेंस्ट किस तरह से जो है वो बिहेव कर रहा होगा। तो इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक हमारे पास जो है वो लोड टेस्टिंग आ जाती है। लोड टेस्टिंग में जो है वो हम एक्सपेक्टेड लोड चेक कर रहे होते हैं कि लेट्स से हम कहते हैं कि अगर इतना लोड आ जाता है तो हमारा सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेस टेस्टिंग आ जाती है। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम जो हमारा एक्सपेक्टेड लोड है उससे हायर लोड जो है वो सिस्टम के ऊपर पुट करके चेक करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड लोड से अगर ज़्यादा अगर हमारे पास सिस्टम में लोड आ जाता है तो उस टाइम पर जो है वो सिस्टम किस तरह से जो है वो बिहेव कर रहा होगा। उसके बाद इंड्योरेंस टेस्टिंग है। इसमें हम सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि अगर कंटिन्यूसली अगर आप जो है वो एक स्पेसिफिक लोड जो एक्सपेक्टेड लोड है अगर आप सिस्टम को देते रहते हैं तो ये तो नहीं है कि स्टार्ट में आपका सिस्टम ठीक से बिहेव कर रहा होगा मगर मे बी कोई हाफ आवर के बाद जो है वो आपका सिस्टम जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी
विद एक्सपेक्टेड लोड चेक कर रहे होते हैं तो वो हम इस कैटेगरी में चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम टेस्टिंग आ जाती है। वॉल्यूम टेस्टिंग में जो है वो सिस्टम को जो है वो हम ह्यूज डाटा जो है वो फीड करके टेस्ट करते हैं कि लेट से आपकी किसी टेबल में जो है वो बहुत जो है बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आप डाल देते हैं, ठीक है, डेटाबेस का, या वैसे यूज़र वाली साइड से जो इनपुट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस सिनेरियोज में हम सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं कि सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। स्पाइक टेस्टिंग में जो है वो हमारे पास जो है वो हम जो है जो सडन इंक्रीज करते हैं यूज़र्स को, जिससे हम स्पाइक्स चेक कर रहे होते हैं कि लेट से अगर आपका सिस्टम स्मूथली नॉर्मली चल रहा है, एकदम से स्पाइक आता है और स्पाइक के बाद क्या सिस्टम आपका रिकवर भी जो है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप की जो है वो टेस्टिंग को हम स्पाइक टेस्टिंग बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कंप्लायंस टेस्टिंग आ जाती है। कंप्लायंस टेस्टिंग में जो है वो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स को, जो कि इंटरनल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, उनको हम एक सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट के थ्रू जो है वो हम जो है वो चेक करते हैं। इसमें इंटरनल की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लेट से एक कंपनी ने जो है एक अपना स्टैंडर्ड ये बनाया हुआ है कि जितनी भी वेब होगी वो आपकी क्या होगी, रिस्पॉन्सिव होगी। तो ये उनकी अपनी एक चेकलिस्ट है कि एक इंटरनल चेकलिस्ट है। तो वो जो है वो आपकी कंप्लायंस टेस्टिंग में जो है ये वाला पार्ट आएगा। और उसके अलावा कुछ आपकी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसा हिपा कंप्लायंस है कि जो स्पेशली जो ये मेडिकल रिलेटेड जो इस तरह की जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसमें आपको हिपा कंप्लायंस चाहिए होती है। तो इसमें दोनों टाइप्स आ सकती हैं, आप इंटरनल साइड से भी इन्फोर्स कर सकते हैं या एक्सटर्नल किसी स्टैंडर्ड को पकड़ के भी जो है वो चेक कर सकते हैं। इनकी चेकलिस्ट वगैरह जो एक्सटर्नल की हैं वो मिल जाती हैं, वो आप उसके लिहाज से वो सिस्टम को जो है वो चेक कर रहे होते हैं। तो अभी तक जो है वो हम जो है सॉफ्टवेयर की इनकी टाइप्स चेक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अभी क्विकली जो है वो हम टेस्टिंग मेथड्स को देख लेते हैं और फिर हम एक जो फर्दर हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेस्टिंग लेवल्स का, उस पर जंप इन करेंगे। तो हमारे पास टेस्टिंग मेथड्स में जो है वो हमारे पास 3 टाइप की टेस्टिंग आती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स और वाइट बॉक्स। ठीक है, इन तीनों में जो है वो ईजी से कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आपके पास सिस्टम का बिल्कुल जो है वो नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप उस पॉइंट पे जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं जिस टाइम पे आपके पास सिस्टम का नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिस तरह आपकी जो आप लेट से आप किसी बाहर से किसी बंदे को जो है वो आप इनवाइट करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे सिस्टम पर जो है वो लोड टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है एपीआई की जो है वो स्पेसिफिकेशन पकड़ा के आप किसी बंदे को कहते हैं कि ये वाली मेरी एपीआई टेस्ट कर दे, ठीक है, तो उसको सिस्टम की डिटेल्स का आइडिया नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक हाई लेवल आइडिया है और विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ सिस्टम अगर आपकी टेस्टिंग हो रही है तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आ जाती है। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग की तरफ आए तो उसमें जो है वो आपको निटी-ग्रिटी और डिटेल्स का पता होता है कि आपकी जो है वो कोड कैसे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर किस तरह से हुआ हुआ है, हर चीज़ की डिटेल्स का पता होता है। और इसी के इनका जो एक मिक्सचर है हमारे पास ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, इसमें पार्शली जो है वो चीज़ों का हमें डिटेल्ड आइडिया होता है और पार्शली जो है वो हमारे लिए हिडन होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप की टेस्टिंग जो है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास लेट्स से अगर हम कोई एक्सटर्नल सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए ब्लैक बॉक्स है, मगर हमारा सिस्टम हमारे लिए वाइट बॉक्स है। उसके अलावा इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स में से हो सकता है कि एक कंपोनेंट का तो आपको आइडिया हो, मगर जो दूसरी है वो दूसरा कंपोनेंट में भी कोई डिफरेंट टीम जो है वो आपकी जो है वो डेवलप कर रही है। तो उस केस में भी जो आप टेस्टिंग कर रहे होंगे वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो है उसके अंडर आती है। अभी जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेवल्स आते हैं, तो मैं आतिफ को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको आगे से प्रोसीड करें। जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, आतिफ फयाज है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Okay, so are you able to see my screen? जी, Okay, thank you. अच्छा जी, so let's start with the discussion on software testing levels. So little bit of context and then I will quickly jump on to the actual discussion. So basically the idea is that as Sohail already told in his initial slide as well, that ensuring product quality it's a combined activity. Actually, it's a mutual activity which dev and QA team performs. So the thing is that the ultimate goal of the team is that to make sure a good quality
software get delivered into the customer hand, right? So, and I mean, traditionally जो टेस्टिंग के अंदर अप्रोच यूज होती थी वो ये थी कि आप सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है आपको और एट द एंड आप एक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जो कि ट्रेडिशनली हमारे पास वाटरफॉल मॉडल था और उसके अंदर डेवलपमेंट भी उसी तरह होती थी और टेस्टिंग भी उसी तरह परफॉर्म की जाती थी एट द एंड. बट as the development and all the activities are moving to a agile process, so testing is also migrating in that direction. And as soon as we write a single piece of software, whether it is a function or a smaller unit or class, we start testing it so that we make sure that we are testing it and it is performing as per the expected requirement. So, I mean, the idea of the pyramid is around this whole concept that you start with a smaller unit. आप जो भी छोटा सा यूनिट लिखते हैं उसके साथ आप टेस्टिंग उसकी करते हैं, ताकि जब एक बिगर सॉफ्टवेयर जो कि बनता है और डिलीवर होता है कस्टमर को, सो वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो. अच्छा, सो द कॉन्सेप्ट जो है वो पिरामिड का इस तरह से कि आप देख रहे हैं कि नीचे यूनिट टेस्टिंग है, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग का स्टैक है, फिर सिस्टम टेस्टिंग है, फिर यूएटी है, और on the top there is a block of exploratory testing as well. So unit testing, actually we will go through all these in detail. In the next slide I will just give you a brief intro here. So unit testing is more focused on the units. Unit can be, the definition of unit can vary, but as whenever you are testing a piece of software which is independently testable and has no dependency on external services, or you are testing that unit. It can be a class, it can be a function, it can be a bigger unit, a whole software module. And it is usually done by the development team. It is not done by QA. And integration testing is when you combine those pieces which you have developed and you are testing it in an integrated environment. The focus of integration testing is around the integration points of those integrated components. There is a slight difference between integration and the system testing, because in the system testing you are testing the whole flow, the end-to-end flow of the use case, but in integration the focus is on the integration points, that how the components are interacting. And this type of testing is also, there is an overlap usually as we are moving toward the DevOps and the automation things, and this type of testing becomes part of the CI/CD pipelines. And so this is mostly done by developer, but in some cases QA also jumps in this type of testing. Similarly, system testing is actually now more focused towards how the system will be used by the end user, and how it is performing all the business function which is supposed to perform. So in the system testing we will focus on that part, and in the UAT actually it is done by the actual user or the pilot users, and it is actually done by the customer team on some user which are nominated by the customer side. And exploratory testing is done on staging environment and sometime on production as well, that you randomly test some scenarios, and it is a control activity. It is again not scripted one. So you randomly test some scenarios on the production and check whether the build is working fine or not. So actually this is a line which is showing that unit test, when you go from bottom to top, the test at the bottom, they are fast to develop, they are cheaper to write, and they are fast to execute and fast to check. And similarly, you go up to when you go towards the above level of the pyramid, the tests which are written on the above level, they are actually expensive to write and they are slow to execute. Now we'll go to the individual detail of each of the testing levels. So as I told you that unit testing is
more focus on the individual units or components of the software which you are writing. So ये चीज स्टार्ट होती है as soon as you have written a function or a class, you can start writing their unit test. इसका फायदा क्या होता है कि जब आप छोटे यूनिट्स के ऊपर अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो डेवलपमेंट टीम को भी एक कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है कि आपका जो एक स्मॉलर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है वो एक वर्किंग स्टेट में आ चुका है, क्योंकि जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे आप मेक श्योर नहीं कर सकते कि वो अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं. So it gives a confidence if you start with a smaller unit. Okay, so let's come to the definition. A level of the software testing process where individual units of the software are tested. The purpose is to validate that each unit of the software perform as designed. Okay, इसको एक हम example से explain करते हैं. Let's say हमारे पास एक order management system है और order management system के अंदर आपको होता है multiple units involved हो सकते हैं. There can be an order module. There is a separate module which is dealing with the payments, and there is another module which is dealing with the shipment. So I've just shown you a couple of examples that when we are writing unit test, our focus is on a specific unit, which is in this case a order module, and we are writing unit tests around that order module. So these are some examples that we are writing some unit tests. We are checking that order. We are trying to add an order item which does not exist. We are trying an order item which is out of stock. We will try that, how it works and how the system behaves. Then we will check out the order and we will try to do a payment which is less than the order total. Similarly, we will also check that whatever order item we have put on, the sum of the orders are matching with the total of the items. Another example could be that we are also making sure that the shipment charges are included in the order total as well. So these are a couple of examples that we are writing different scenarios and unit tests which is only focused on the order. So the important thing here is that the other part of the system, we are just, these are not real because obviously payment, someone is working on payment service and some other developer are also working on the shipment part. So these might not be available. So what we will do, we will use some mocking techniques here. We will mock the responses of these services and test the order service only. Okay. So next level is integration testing. So integration testing is basically, it's the level of testing where when we have all the units built together and now we want to test them in an integrated way. So we will test the integration, the inter-service communication, how they are communicating, whether they are communicating as expected or there is some there is some issue with the communication mechanism, whether the communication mechanism is broken or it is working fine. So this is the whole focus of the integration testing. Obviously, there is an overlap between integration testing and the system testing, because when you are doing testing in an integrated environment, you're also testing the functionality as well. But that part actually fall more in the system testing paradigm. Okay. Again, हम अपने ऑर्डर वाली एग्जांपल कोई लेते हैं तो बेसिकली यहाँ ये होगा कि यहाँ हम एक्चुअल हमारे पास जो दूसरी सर्विसेज हैं जिसमें पेमेंट का मॉड्यूल आ जाता है या शिपमेंट का मॉड्यूल आ जाता है तो वो भी इन प्लेस होंगे, अवेलेबल होंगे, हम उनके साथ ऑर्डर के अपनी सर्विस को टेस्ट कर रहे होंगे. यहाँ असल में एक से ज़्यादा अप्रोचेस यूज होती हैं. सम पीपल से दैट द अदर सर्विसेज शुड बी रेडी एंड they should be available and live. This is what is referred to Morton Fowler जो है वो उसको रेफर करता है कि इसको आप ब्रॉड स्कोप इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं. और लेकिन कुछ केसेस में आप एक्चुअल जो हमारे पास दूसरी एक्सटर्नल सर्विसेज हैं या जो आपका जो मॉड्यूल जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं भी होती, तो उस केस में उनको भी आप मॉक कर रहे होते हैं, which is called narrow scope of testing. Anyhow, मतलब इसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेस है लेकिन होल पर्पस ये है कि आप इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे हैं.
तो यहाँ जो हमारे जो इंटीग्रेशन टेस्ट हैं वो आप देख रहे हैं वो थोड़े से अब वो इस जो ऑर्डर मॉड्यूल जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ टेस्ट केसेस हमारे इस तरह के होंगे कि आप ऑर्डर को चला के देखेंगे कि ऑर्डर प्लेस हो रहा है कि नहीं विद हैप्पी सिनेरियो, और फिर आप देखेंगे कि आप इनवैलिड इनपुट देख रहे हैं। इसके अंदर आप मुख्तलिफ वेरिएशन यहाँ नहीं अब देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ हम यूनिट टेस्ट में कवर कर चुके हैं। आप एक फेलियर वाला फ्लो चला के देखेंगे कि हाउ द सिस्टम इज बिहेविंग इफ यू प्रोवाइडेड सम इनवैलिड इनपुट्स। Similarly, we will test the order use case with different type of payment methods, like you will try with cash or credit card. And similarly, when it comes to the shipment module, you will try it with different shipping options. It could be a standard or express, overnight, these kind of things. ओके, सो इंटीग्रेशन टेस्ट हमें कुछ एडवांटेजेस भी देता है। ऑब्वियसली जब आप इंटीग्रेशन टेस्ट को अर्ली अपने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर या टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर अर्ली एड्रेस कर रहे होते हैं, तो बेसिकली अगेन कंपोनेंट की आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, इस चीज़ को हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह कुछ अगर ओवरलुक बग्स हैं जो कि आपने यूनिट टेस्टिंग के दौरान ओवरलुक कर दिए, तो वो इस लेवल में आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और इसी तरह एक्चुअली इट विल हेल्प यू टू स्पीड अप योर डेवलपमेंट प्रोसेस एज वेल, क्योंकि जैसे मतलब जो बग लेटर आइडेंटिफाई होगा वो फिर हार्ड टू फिक्स भी होगा और मोर कॉस्टली भी होगा उसे फिक्स करना। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर फर्दर फिर कुछ अप्रोचेस भी आ जाती हैं। अगेन ये कुछ क्लासिकल जो हमारा स्टाइल ऑफ डूइंग डेवलपमेंट इन क्यूए है उससे रिलेटेड है, कुछ जो है अभी वो मॉडर्न जो हमारी अप्रोचेस है उनके साथ भी अलाइन करती हैं। उसमें एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग की ब्रॉडली दो तरह की अप्रोचेस हैं, एक बिग बैंग अप्रोच कहलाती है और एक इंक्रीमेंटल, और इंक्रीमेंटल के अंदर फर्दर तीन तरह की टाइप्स हैं। बिग बैंग इज के आप तमाम सिस्टम यूनिट्स जो भी आप जिस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाह रहे हैं उसके जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका वेट करें कि वो रेडी हो जाते हैं, तो फिर आप उनको इकट्ठा टेस्ट करें, जो कि बहुत सारे केसेस में डिज़ायरेबल नहीं होता। ऑब्वियसली हम एक फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं और हमें एज सुन एज पॉसिबल जो चीज़ें रेडी हैं उनको टेस्ट करना होता है। तो बिग बैंग बाज़ केसेस में मतलब बाज़ केसेस में ये अप्रोच यूज़ भी होती है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन फ्लॉज भी हैं। जैसे कि आप जब बिग बैंग एनवायरनमेंट में टेस्ट करें तो आपको हार्ड होता है आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया में इशू आया है और कौन सा मॉड्यूल जो है वो एज एक्सपेक्टेड फंक्शन नहीं कर रहा। और इंक्रीमेंटल के अंदर टॉप डाउन बॉटम अप सैंडविच अप्रोच आती है। इसमें होता ही है कि जो कंपोनेंट्स रेडी होंगे आप उनको टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और जो कंपोनेंट्स रेडी नहीं होंगे आप उनको उनकी जगह स्टब और ड्राइवर्स वगैरह यूज़ करेंगे या टेस्ट डबल्स को यूज़ करेंगे। तो अगर तो आप ऐसे मॉड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ड्राइविंग द फ्लो एक्चुअली, तो फिर आप जो लोअर मॉड्यूल्स हैं या जो अदर डिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं उनकी जगह स्टब यूज़ करते हैं। सो स्टब और ड्राइवर की टर्म एक्चुअली बाज़ लोग इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। अगर आप ऐसे मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं जो इटसेल्फ फ्लो को ड्राइव कर रहा है, तो उस केस में जो अदर मॉड्यूल्स हैं वो स्टब कहलाते हैं, जिनको आप मॉक कर रहे होते हैं फॉर टेस्टिंग। इसी तरह अगर आप एक ऐसे मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं जैसे कि हमारे एग्जांपल के अंदर ऑर्डर का मॉड्यूल है, वो एक ड्राइवर मतलब वहाँ से एक फ्लो स्टार्ट होता है, तो उस केस में जो बाकी दो मॉड्यूल्स हैं वो एज अ सब बिहेव कर रहे होंगे। इसी तरह लेट्स से अगर पेमेंट मॉड्यूल हमारा पहले रेडी हो जाता है और हमारा ऑर्डर का मॉड्यूल रेडी नहीं है, तो उस केस में ऑर्डर को जब हम मॉक कर रहे होंगे तो उसको हम ड्राइवर कहेंगे कि उस केस में जो फ्लो का जो इनिशिएशन वाला पार्ट है वो रेडी नहीं है और वो हम थ्रू अ ड्राइवर जो है उसको मॉक कर रहे होंगे। और सैंडविच अप्रोच के अंदर बेसिकली मिक्स ऑफ अप्रोचेस यूज होती हैं, जिसके अंदर आप दोनों तरह के मॉड्यूल्स को यानी सम ड्राइवर्स मॉड्यूल्स सम स्टब मॉड्यूल्स उनको यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, सो the next level is of system testing. So system testing is when every piece of software is integrated and well tested, and then you jump onto the system testing. तो बेसिकली यहाँ जो टेस्टिंग का फोकस है वो मोर बिजनेस ओरिएंटेड है। आप बिजनेस यूज केसेस को टेस्ट कर रहे होते हैं, एक्चुअल सिनेरियोज को टेस्ट कर रहे होते हैं, और
अगेन ये इसके अंदर ओवरलैप है इंटीग्रेशन के साथ, तो ये नहीं है कि बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट वे में हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ यानी और नॉर्मली यहाँ क्यूए इन्वॉल्व होता है, यानी डायरेक्ट क्यूए टीम इन्वॉल्व होती है जो कि रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैप कर रही होती है कि एक्चुअल सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। और सिस्टम टेस्टिंग के अंदर फर्दर दो तरह के लेवल्स आ जाते हैं, फंक्शनल सिस्टम टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल सिस्टम टेस्टिंग। फंक्शनल सिस्टम टेस्टिंग अगेन सोहेल ने भी एक्सप्लेन किया, मतलब ये बेसिकली कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम है जिसके अंदर जो आपका सिस्टम एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है फंक्शनैलिटी उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। इन कोर बिजनेस यूज केसेस को हम जो है वो टेस्ट कर रहे होंगे। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर ऑब्वियसली क्रॉस कटिंग कंसर्न्स आ जाते हैं, जैसे परफॉर्मेंस है, लोड टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है, ये एरियाज आ जाते हैं कि जो कि बेसिकली डायरेक्ट बिजनेस फंक्शनलिटी को तो इफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आप लाइव एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपका सिस्टम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है एक्चुअल लोड के साथ। जब आपके पास साइमल्टेनियस यूजर्स आ रहे हैं या हैवी ट्रैफिक आ रही है तो इट इज परफॉर्मिंग। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि जब आप सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यू आर एक्चुअली बेसिकली परफॉर्मिंग द टेस्टिंग इन एन एनवायरनमेंट विच इज एज क्लोज टू एज प्रोडक्शन। इसके अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हम इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि क्यूए के अंदर ऑब्वियसली टेस्ट डेटा अवेलेबल होता है। स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट मोर और लेस रेप्लिका होता है प्रोडक्शन का, वहाँ बाद दफा डेटा भी रेप्लिकेट कर लेते हैं प्रोडक्शन का ताकि आपको एग्जैक्ट प्रोडक्शन के डेटा के साथ टेस्टिंग की जा सके। सिमिलरली ऑन द लोड टेस्टिंग साइड यू सिमुलेट द लोड, जनरेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जो कि साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट आप जनरेट करके तो एक्चुअल लोड को सिमुलेट कर रहे होते हैं। तो द आइडिया इज दैट आप जितना प्रोडक्शन के रिजेंबलिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट करेंगे उतने जो है ना वो आपके चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी अर्लियर और उतना इजीली आप उनको फिक्स कर सकते हैं अर्लियर इन द टेस्टिंग। So acceptance testing is a fourth level. It is actually a process where actual users or some nominated user from the customer team test your software, and they also evaluate it from the user experience point of view and how they have expected or how they have envisioned the system. So basically टेस्टिंग वही है, बिजनेस यूज केसेस के अराउंड ही टेस्टिंग है, लेकिन टेस्टिंग अब जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कस्टमर की तरफ से कुछ यूजर्स है, ये कस्टमर खुद परफॉर्म कर रहा है। और इसके अंदर और नॉर्मली ये टेस्टिंग भी कस्टमर के प्रेमिसेस के अंदर हो रही होती है। और इसके अंदर बेसिकली आइडिया ये होता है कि आप एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं जिसके अराउंड आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर कोर बिजनेस फंक्शनैलिटी भी आ जाती है, यूजर एक्सपीरियंस भी आ जाता है और इन्हीं कॉस्मेटिक्स की चेंजेस भी आ जाती हैं कि हाउ द लुक एंड फील ऑफ द फाइनल सॉफ्टवेयर इज। इसके अंदर फर्दर डिवीन की जाती है अराउंड अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। सो अल्फा टेस्टिंग इज यूजुअली परफॉर्म बाय द डेवलपमेंट टीम, इट इज परफॉर्म ऑन द डेवलपमेंट team premises. Beta testing is performed on the customer premises. So I mean ये कुछ थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है इसके अंदर, अदरवाइज इसका आइडिया ये है और इसका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अराउंड ही होता है। I think that's it. कितनी slides रह गई हैं? Because we do need, I see in the chat people are asking questions, so we do need a good amount of time for asking any like for people to ask questions. How many slides? जी मैं लास्ट एक स्लाइड है उसके लिए मैं Perfect. जी, so this is agile testing quadrants. I will hand it over to Sohail.
ओके, हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो क्विकली जो है वो इस स्लाइड को जो है वो जो समराइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम Q&A सेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो अभी हमने जो है वो टेस्टिंग टाइप्स जो हैं वो उनको देखा था, जिसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स, हम स्मोक वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह हम देख रहे थे। मगर जब हम एजाइल टेस्टिंग की बात करते हैं तो एजाइल में जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है अपने आपके टेस्ट केसेस को देखने का जब हम एजाइल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो इस जो है वो जो जिसको हम टेस्टिंग क्वाड्रेंट्स बोला जाता है एजाइल टेस्टिंग में, जो ये काफ़ी एक फेमस जो है वो क्वाड्रेंट है जिसमें डिफरेंट जो है वो टेस्ट केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो ये वाला जो क्वाड्रेंट यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 4 टाइप के जो है ना वो फेसेस हो सकते हैं। अपर साइड पे अगर हम देखें तो वो बिजनेस फेसिंग है, कि जो कि क्लाइंट वाली साइड से जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है, तो वो आपका बिजनेस फेसिंग हो गया। फिर उसके बाद अगर हम राइट साइड पे देखें तो क्रिटिक प्रोडक्ट है, ठीक है। क्रिटिक प्रोडक्ट में ये है कि वो हम अपने अपने सिस्टम को जो है वो इस तरह से क्रिटिक कर रहे होते हैं कि उसमें बेहतरी आ जाए, ठीक है। अपने सिस्टम को हम में से हम बग्स ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने इस तरह से प्रोडक्ट को हम क्रिटिक कर रहे होते हैं कि इसके अंदर से प्रॉब्लम्स निकलें और ये एक मैच्योर प्रोडक्ट बन जाए। उसके बाद नीचे वाला जो है वो फेस को देखें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी फेस आता है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कौन से जो है वो टेस्ट केसेस वगैरह को कवर कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एक आता है सपोर्टिंग द टीम, कि कौन से ऐसे टेस्ट केसेस हैं जो कि जिनको अगर हम लिखें तो उससे टीम को सपोर्ट मिल रही है। टीम से सपोर्ट का मतलब ये कि है ना, अगर लेट्स से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो मैच्योर है, ठीक है, तो उसमें टीम को सपोर्ट ये मिल रही है कि उन्हें कुछ इस तरह से जो है वो इस तरह के अननोन बग्स नहीं मिल रहे कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे से इसको टेस्ट करना है, किस तरह से इसको डिबग करना है। तो हर जो दो हमारे पास जो फेसिंग हैं, जो जो एडजेसेंट फेसिंग्स हैं, इनको अगर हम मर्ज करें तो हमारे पास एक क्वाड्रेंट बनता है। जिस तरह हम Q1 की बात करें, ठीक है, अच्छा इसमें सीक्वेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, ये जैसे इसको नंबरिंग दी हुई है Q1 Q2 Q3 Q4। तो Q1 की अगर हम बात करें तो जब हम टेक्नोलॉजी फेसिंग और टीम सपोर्ट फेस जो है, ठीक है, इसको जब हम मर्ज करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो है, ऑटोमेटेड टेस्ट बनते हैं जिसमें हमारे यूनिट टेस्ट और कंपोनेंट टेस्ट वगैरह इस तरह की टेस्टिंग आती है, जो कि प्योरली जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं और टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, वो बेहतर परफॉर्म कर सकें, बेहतर जो है वो क्वालिटी परफॉर्म कर सकें, बग्स जो हैं कम आएँ और अगर आएँ तो वो उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो। उसके बाद अगर टीम सपोर्ट और बिजनेस की बात करें, ठीक है, जब इस हम दोनों फेसेस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटेड और मैनुअल टेस्टिंग दोनों टाइप की चीज़ें बनती हैं, जिसमें हम क्या देख रहे होते हैं कि टीम सपोर्ट के लिए हम बिजनेस फेसिंग जो है वो टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं, जिसमें हमारे फंक्शनल टेस्ट केसेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो 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 स्टोरी टेस्ट हैं कि जो आपके पास बिजनेस स्पेसिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंगली वो ठीक से आपने टेस्ट केसेस भी हैं वो लिखे हैं कि नहीं लिखे, या फिर जो आप अर्ली फेजेस में जो है वो क्लाइंट को जो है कुछ प्रोटोटाइप्स या सिमुलेशंस वगैरह बना के दे रहे होते हैं कि ये देखें इस तरह से आपका सिस्टम जो है वो बिहेव कर रहा होगा जब वो एक्चुअल प्रोडक्शन पे चलेगा। तो इस तरह की जो टेस्टिंग है वो दोनों, अगर हम कॉर्नर पे देखें तो ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों दोनों टाइप में आ रही होती है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो बिजनेस फेसिंग और प्रोडक्ट क्रिटिक में आता है, कि आप जो है बिजनेस पर्सपेक्टिव को देखते हुए प्रोडक्ट को क्रिटिक कर रहे हैं। और ये जो है इसमें सारी आपकी मैनुअल टेस्टिंग आती है, जिसमें आपके प्रोडक्शन के ऊपर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जो आप कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग, आप यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग, ठीक है, जो कि प्योरली आपके बिजनेस को फोकस कर रही होती है, ठीक है। तो ये वाला आपका इस तरह के टेस्ट केसेस आपके आपके जो क्वाड्रेंट 3 में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो आपका आता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को क्रिटिक कर रहे हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट टूल्स आते हैं। उन टूल्स की मदद से जो आप अपने अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, जिसमें हमारी आपकी परफॉर्मेंस और लोड टेस्टिंग से रिलेटेड आपके डिफरेंट टूल्स वगैरह, इस तरह JMeter है और इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं। उसके अलावा आपकी इनकी सिक्योरिटी टेस्टिंग आ जाती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग में आपके जैप टूल है, उसके अलावा
सिक्योरिटी के जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट डोमेन है जो कि सिक्योरिटी को जो है वो आपकी फोकस कर रही होती है। उसके अलावा जितने भी एलिटी टेस्टिंग्स आती हैं, जिस तरह मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सप्लोरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, इस तरह की जितनी भी एलिटी टेस्टिंग्स हैं वो इसके जो है वो टूल्स के अंडर आ रही होती हैं। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है एजाइल टेस्टिंग में डिफरेंट टेस्ट केसेस को देखने का, जिसको कि टेस्टिंग क्वाड्रेंट्स जो है वो बोला जाता है। तो आई थिंक हम यहाँ पर जो है वो सेशन को क्लोज करेंगे और हम Q&As के लिए जो है वो ओपन करते हैं। पहले क्विकली जो है वो हम देख लेते हैं। एक जहांजेब ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जहांजेब का क्वेश्चन जो है वो चैट में था कि जो हमने फंक्शनल टेस्टिंग की बात की है, हमने नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की बात नहीं की। तो जब मैं फंक्शनल टेस्टिंग को जब एक्सप्लेन कर रहा था तो हमने एक मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अक्सर जो है वो हम इसको नॉर्मल टर्म में जो है फंक्शनल टेस्टिंग को हम फीचर टेस्टिंग भी बोल रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये कि बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज हैं। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो है वो हमारे पास एक ब्रॉडर कैटेगरी भी है। तो इस वजह से जो है ना जो ये वाली चीज़ें जो ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो अगर आप नॉन फंक्शनल की बात करें तो आपकी जितनी भी जो सिक्योरिटी टेस्टिंग है, फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह, ये सारी की सारी इसी टाइप्स के साथ जो है वो इसी में लाई कर रही होती हैं। तो हमने जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल को ओवरऑल डिस्कस नहीं किया हमने, जो कि एक डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव है कि आप जितने भी टाइप के टेस्ट केसेस है ना उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और इसमें से जो हमने टाइप्स हमने एक्सप्लेन की हैं वो कौन सी वाली हैं, तो जो लास्ट वाली मोस्टली जो टाइप्स थी वो हमारी नॉन फंक्शनल वाले एरिया को जो है वो कवर कर रही हैं। जंजेब, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था कि GDPR जो है वो कंप्लायंस टेस्टिंग में आता है। तो जी, ये कंप्लायंस टेस्टिंग में आता है। इस तरह की जितनी भी जो आपकी कंप्लायंस हैं जो कि डिफरेंट जो है वो चेकलिस्ट के थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं, ये आपकी मोस्टली कंप्लायंस टेस्टिंग में आती हैं। ठीक हो गया। आई थिंक अब जो है वो ओपन करते हैं सबके लिए, कुछ जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द स्मोक टेस्टिंग और रिग्रेशन सूट्स। अच्छा, ऑटोमेशन में जो मैंने काम कर रहा था उसमें ये होता है कि हम लोग ने रिग्रेशन अच्छा सूट्स सॉरी, अपने एक इंस्ट्रक्शन है सर, इंस्ट्रक्शन है सबके लिए, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो काइंडली आप अपना नाम पहले मेंशन कर दें। ओके सो आई एम अक्सन एंड आई एम सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। आई वाज वर्किंग इन फ्रीडम पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाइल आई वाज वर्किंग इन फ्रीडम पे, तो उनकी प्रोडक्ट इस तरह की थी कि हमने अपने रिग्रेशन सूट्स इतने स्ट्रांग किए हुए थे कि उसमें हमें जो स्मूथ टेस्टिंग है वो करने की जरूरत इस तरह नहीं पड़ती थी कि हम लोग रिग्रेशन सूट्स ही चला लेते थे। उसमें हमारी रिग्रेशन भी कंप्लीट होती थी, उसमें हमारा स्मोक टेस्टिंग भी कंप्लीट होती थी। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि हम या तो रिग्रेशन को बाईपास कर रहे थे या हम स्मोक को बाईपास कर रहे थे। मतलब क्या ये अप्रोच फिजिबल है जो कि हम कर सकते हैं इन ऑटोमेशन, कि हम मतलब किसी एक टेस्टिंग टाइप को बाईपास कर सकते हैं इस तरह? अच्छा, सिनेरियो टू सिनेरियो जो है ना वो चीज़ें जो है ना आपकी वेरी करती हैं, और स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन वाली साइड पर चले जाते हैं ना तो फिर आपकी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आपकी ऑलरेडी कवर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो जस्ट आपकी अलाइनमेंट है कि आपने जो है अगर आपकी बिल्ड और आपका बिल्ड नेचर ऑफ बिल्ड जो है वो आपको अगर आपको अलाउ कर रही है कि आप उसको टाइम दे सकते हैं, तो वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग में जो है वो सारी चीज़ जो है वो परफॉर्म हो जाती है कि आपने स्मोक के बजाय आपने रिग्रेशन ही वो जो आपने सारा चला दिया। ठीक है, मगर यहाँ पर जहाँ प्रॉब्लम होता है वो वहाँ पर होता है जब आपके पास ऑटोमेटेड टेस्टिंग नहीं होती। ठीक है, जब ऑटोमेटेड टेस्टिंग आपके पास नहीं है, आप प्योरली आप मैनुअल टेस्टिंग पर जब आप काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपके लिए ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रहता कि आपके पास जैसे ही आपके पास बिल्ड आई है आपने उसके ऊपर जो है वो आपने रिग्रेशन रन कर दिया। और बल्कि अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज की बात करें तो कुछ लोगों को रिग्रेशन चलाने के लिए पूरा वीक से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो वो ऑटोमेशन के केस में जो है वो लिबर्टी आ जाती है आपको कि अगर आपका टाइम परमिट करता है तो आप वो एक सॉर्ट ऑफ आपने अपने स्मोक को ही इतना इन्हेंस कर दिया है कि वो आपके बहुत से एरियाज को कवर करना स्टार्ट हो गया है। मगर ये है कि स्टिल एक बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप पहले जो है वो आप जो आपके शॉर्ट रनिंग जो आपके टेस्ट केसेस होते हैं वो रन करें। फिर उसके बाद फर्दर जब आपकी बिल्ड जो है वो आपके गेट्स पास करती जा रही है तो आप लॉन्ग रनिंग और इस तरह के टेस्ट केसेस वगैरह जो है वो आप ऐड करना स्टार्ट कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि ना आपका जो रिस्पॉन्स जो है ना आपके बग मिलने का, ठीक है, वो तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा।
सुहेल भाई मेरा एक ठीक है। सुहेल भाई क्वेश्चन है, आकिल बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात की थी और आपने सर्वर्स वगैरह की, मतलब इंट्रूडर्स हमारे उसको चेक ना कर सकें तो सिक्योरिटी पैचेस वगैरह ये चीज़ें लगानी दी हैं। तो मैंने ये पूछना था, ये ऑटोमेटेड वे में होती हैं या इसका हम क्या साइकिल परफॉर्म करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, और ये मोस्टली डेवलपर्स ही करते हैं या क्यूए टीम भी करती है ये चीज़ सिक्योरिटी टेस्टिंग से रिलेटेड है? अच्छा, इसमें जो है वो जो सिक्योरिटी टेस्टिंग से रिलेटेड है, ये दोनों टाइप की अप्रोचेस जो हैं वो फॉलो की जा सकती हैं। कुछ आपको ऑटोमेटेड टूल्स भी मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपके नेटवर्क को स्कैन करके आपको वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह के बारे में बता देते हैं। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में बता देते हैं। अदरवाइज़ आप मैनुअल भी इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि लेट से आप जाके कर्नल वर्जन जो है वो उसको आप मैच कर लेते हैं कि जो मेरा करंट जो ओएस पे जो वर्जन चल रहा है, जो कर्नल का वर्जन चल रहा है, क्या वो डेप्रिकेट तो नहीं हो गया हुआ, ठीक है। तो वो दोनों टाइप की टेक्निक्स आपको मिलती हैं। क्लाउड जो हैं वो आपको काफ़ी अच्छी यूटिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से AWS की बात करूं तो आपको ट्रस्टेड एडवाइज़र के नाम से जो है वो एक सर्विस मिलती है उनकी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो कवर कर रही होती है वो, ठीक है। मगर उसमें एक उसका जो एस्पेक्ट है वो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट भी है कि वो आपकी जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनको आपको पॉप अप करके दे रहा होता है कि आपकी ये वाली पोर्ट ओपन रह गई है, ठीक है, आपका ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन ये कि ना, इनको कौन लोग परफॉर्म कर सकते हैं? जो लोग एलिजिबल हैं। आपकी अगर डेव टीम जो है, अगर उसके पास सिक्योरिटी का नॉलेज है तो आपकी डेव टीम परफॉर्म कर सकती है। अगर आपकी क्यूए टीम के पास जो है वो अगर इस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपकी जो हेल्पिंग आईटी टीम या डेवऑप्स टीम है, वो भी जो है वो स्पेसिफिकली जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं तो वो लोग भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सोहेल अक्सम अगेन है। मेरे को क्वेश्चन है कि अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीक करें तो डीबी टेस्टिंग जो होती है ये किस में फॉल करती है? ये ब्लैक बॉक्स में आती है, ग्रे बॉक्स में आती है? इसको हमें किस में रखना चाहिए ज्यादा? ब्लैक बॉक्स को किस में रखना चाहिए? अच्छा, जो डीबी जो है ना वो, सॉरी, आई वाज आस्किंग अबाउट डीबी टेस्टिंग। ये किस टेस्टिंग टेक्निक में है ये? अच्छा, जो टेस्टिंग वाली जो डीबी टेस्टिंग वाली जो चीज़ है ना, इसमें अगेन काफ़ी एक कन्फ्लिक्टेड टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं डीबी के टेस्ट लिखे जाने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि डीबी के टेस्ट नहीं लिखे जाने चाहिए। तो इन माय ओपिनियन जो डेटाबेस के टेस्ट अगर आप लिखते हैं ना तो वो आपके वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ही आएंगे, क्योंकि आपको डेटाबेस का जो है वो नॉलेज है कि आप किस तरह के स्ट्रक्चर में आपका डाटा पड़ा हुआ और क्या चीज़ जो है वो आप उसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मगर ये सिनेरियो टू सिनेरियो जो है वो वेरी कर सकती है ये चीज़, ठीक है। कुछ ये भी हो सकता है कि आपको जो है डेटाबेस ही इस तरह का प्रोवाइड किया गया कि उसको आपको एक व्यू प्रोवाइड किया गया हुआ है, ठीक है, आपको पूरे जो है वो डाटा का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये गिवन सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी जो है वो वाला जो है वो मेथड चेंज हो रहा होगा। मेरा एक क्वेश्चन है सुहेल भाई, ये लास्ट टाइम भी बड़ा, मतलब मैं कंफ्यूज ही रहा था और हम लोग इसका आंसर भी नहीं कर पाए थे। जब हम एक्सटर्नल सर्विसेज के साथ अपनी मतलब चीज़ों को करते हैं तो वो यूनिट टेस्टिंग में आती है, एक्सटर्नल कौन से टाइप ऑफ में आती है? मतलब एक्सटर्नल सर्विस के साथ मैं इंटीग्रेट करूँ, चाहे वो मेरा हमारे केस में अगर देखें V2 आ जाता है, फायरबेस आ जाता है, AWS आ जाता है, तो इन चीज़ों के साथ जब हम अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं या इसके साथ कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेट का भी वर्ड आता है, तो इंटीग्रेट भी लोग यूज़ करते हैं। तो ये मतलब आतिफ भाई ने का ये पार्ट था, तो ये मतलब किस चीज़ में आती है जो एक्सटर्नल सर्विसेज के साथ हम कर रहे होते हैं? जी अकिल, एक्चुअली ये जो एरिया है ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ही फॉल करता है बाय डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके अंदर इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व हो रही है। बाकी जहाँ तक बात ये है कि इसके लिए मैंने आपको बताया अप्रोचेस दो तरह की यूज़ होती हैं। बाज़ लोग इधर भी मॉकिंग को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल उसके अंदर यानी दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि आपकी एक्सटर्नल जो सर्विस है वो अवेलेबल होनी चाहिए, अप एंड रनिंग होनी चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन टेस्ट को परफॉर्म कर दें, पर मतलब कर रहे हो तो एक डिपेंडेंसी आ जाती है। तो इस डिपेंडेंसी को अवॉइड करने के लिए बाज़ लोग एक्सटर्नल सर्विसेज को भी मॉक कर रहे होते हैं। मॉक मतलब ये कि एक
बाज़ केसेस में, नॉट स्पेसिफिकली इन केसेस ऑफ क्लाउड सर्विसेज, बट लेट्स से आपकी एक एक्सटर्नल सर्विस है जो कि एक मैसेजिंग स्टोर पर रिलाई कर रही है, जैसे काफका वगैरह, तो लोग उसके कंटेनर रन करके जस्ट फॉर टेस्टिंग तो उसको टेस्ट कर लेते हैं कि आपकी इंटीग्रेशन जो है ना वो वर्क कर रही है कि नहीं। और इसी तरह इसमें बास केसेस में जैसे आप क्लाउड की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट का फैक्टर भी आ जाता है, या आप अपनी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसको एक्चुअल टेस्टिंग के लिए नहीं यूज़ कर रहे होते, तो या तो ये कि आपको क्लाउड के अंदर टेस्ट एनवायरनमेंट मिलें जिनको आप फॉर टेस्टिंग यूज़ करें, अगर आप एक्चुअल एनवायरनमेंट को इंटीग्रेशन टेस्टिंग में लाना चाह रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन ये चीज़ फॉल तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में करती है, अप्रोचेस वेरी कर सकती हैं कि आपको। अच्छा, इसमें आतिफ मैं ऐड करना चाहूँगा कि खासकर जो टेस्टिंग है, आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। अच्छा जी, अब ठीक है जी। मैं इसमें ये ऐड करना चाहता था कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो एक्सटर्नल सर्विसेज हैं उसको हम मॉक ही करते हैं, वो एंड टू एंड यूज़ नहीं होती। इसमें अगर आप वो testing.walmart.com पे देखेंगे ना तो उस पे डेफिनेशन भी मिल जाएंगी। और अगर हम एक्सटर्नल सर्विसेज को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो दैट इज एंड टू एंड टेस्टिंग। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है। असल में ना ये डेफिनेशन मतलब आप ये समझ लें कि ये चीज़ कुछ लोग अभी भी इस डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं कि जब एक्चुअल सर्विसेज रनिंग में होंगी और फिर आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, बाद लोग इसको भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो ये डिबेट जो है ना मौजूद है, इसलिए मैंने इस एंगल को कवर किया है। वरना आपकी बात सही है, प्रेफरेबल यही है कि आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी एक्चुअल सर्विसेज को इन पिक्चर ना लाएं, वो आपकी एंड टू एंड टेस्टिंग के अंदर ही आएंगी। अच्छा, अगर असल में वो है ना कि वो फिर आपकी CI/CD का इसमें इम्पैक्ट आता है अगर आप उसको ना। हाँ जी, क्योंकि देखें अगर आप हाँ बिल्कुल, ये एक प्रिंसिपल है कि अगर आपकी CI/CD की पाइपलाइन फेल हो रही है ड्यू टू सम एक्सटर्नल सर्विस व्हिच इज नॉट अवेलेबल, सो ये सही नहीं है प्रिंसिपली, क्योंकि आपका सिस्टम तो अप एंड रनिंग है। तो इसीलिए इस पार्ट को अवॉइड करने के लिए भी आप नॉर्मली एक्सटर्नल सर्विसेज को एक्चुअली हिट नहीं कर रहे होते, बल्कि दरमियान में मॉकिंग ला रहे होते। जी, आतिफ, मरियम है। हाँ जी, मैं इसी चीज़ के अंदर ऐड करना चाहूँगी, जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है जो बाय डेफिनेशन है वो एक्चुअल सर्विसेज को मॉक नहीं करती, एक्चुअल सर्विसेज यूज़ करती है। तो उसको हम एंड टू एंड टेस्टिंग कहते हैं। जब आपकी जो स्लाइड्स के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ उस तरह से मैप होती थी, तो हम किस तरह से कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मॉकिंग होगी। अगर आप उसको थोड़ा स्टेप बैक करें ना तो वो कंपोनेंट बेस्ड टेस्टिंग आ जाती है, कंपोनेंट इंटीग्रेशन उसको कहते हैं। तो जिसमें आप कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने के लिए एक्सटर्नल सर्विसेज को मॉक कर देते हैं। तो बाय डेफिनेशन तो ये चीज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग को तो एक्चुअल सर्विसेज को ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मरियम, इस पे आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, इस पे आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा आफ्टर द मीटिंग। आई कैन गो थ्रू द टेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज ऑन। मैंने रेहान से डिस्कस किया था एंड ही गॉट एग्रीड के जी यही डेफिनेशन है। हाँ जी, और एक और चीज़ मैं बताऊँ तो हमने रेफरेंसेस के अंदर लिंक्स भी दिए हुए हैं। आप मार्टिन फॉलर का आर्टिकल है बड़ा मशहूर इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे, उस पर भी जाके आप देखें ना तो वहाँ भी यही चीज़ डिस्कस हुई है कि जिसको यानी एक ब्रॉड अप्रोच कहलाती है, एक नैरो अप्रोच कहलाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। तो जो ब्रॉड वाली अप्रोच है ना वो इस कैटेगरी में फॉल करती है कि आप एक्चुअल सर्विसेज अप एंड रनिंग हो तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करो। अगेन इसके अंदर ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है, लेकिन इंटरनली हम इसी से एग्री कर सकते हैं मेरे ख्याल में कि हम एक चीज पे डेफिनेटली हर एक का स्कोप डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ इस तरह से लाई करती है। मेरा एक क्वेश्चन सुहेल से भी है। हमने जो Q1 क्वाड्रेंट जो यूज़ किया उसके अंदर हम उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्ट लिखा हुआ था, तो हमने कंपोनेंट टेस्ट अपने किसी स्लाइड में कहीं पे डिस्कस नहीं किया। अच्छा, इसके अंदर जो है ना जो सोर्सेस का डिफरेंस है, जो एजाइल अगेन वही वाली बात के ना जो कंसेंसस है ना लोगों का कि कंपोनेंट टेस्टिंग क्या है, यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है। इवन के जो आपकी जो कंपोनेंट टेस्टिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आपकी जो है वो यूनिट टेस्टिंग में आ जाती है, ठीक है। तो जो सोर्स है ना, जो पूरी थ्रू आउट जो स्लाइड का सोर्स है वो डिफरेंट है, जिसमें वो कंपोनेंट टेस्ट को जो है वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करवाता है, ठीक है। और जो टेस्टिंग क्वाड्रेंट्स वाली जो चीज़ है
ठीक है, वो जो है वो एजाइल टेस्टिंग वाले सोर्स से ली गई है जिसमें उसने कंपोनेंट टेस्टिंग की बात की हुई है। तो इसको अगर हम समराइज करें ना तो सिंपली वो आपके टेस्ट केसेस जो कि प्योरली ऑटोमेट हो सकते हैं, आपके पिरामिड के जो लोअर लेवल पे आते हैं, ठीक है, वो जो है वो आपके जो है ना वो Q1 में आ रहे होंगे। आई वांट टू ऐड अ पॉइंट है, और बेसिकली मैं पहले इंटीग्रेशन वाली टेस्टिंग में भी एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था असद लिया से। तो रिगार्डिंग कंपोनेंट टेस्टिंग जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि बेसिकली ये जैसा सुहेल ने कहा है कि जो लोग यूनिट टेस्ट को ही कंपोनेंट टेस्ट को भी इवन यूनिट टेस्ट में कंसीडर करते हैं, वो डिबेट है यूनिट टेस्ट का साइज क्या होना चाहिए, यूनिट्स का साइज क्या होना चाहिए। सब लोग कंपोनेंट्स को ही एज ए यूनिट कंसीडर करते हैं और कंपोनेंट लेवल के ही टेस्ट केसेस लिखते हैं। सो वो ये डिबेट है कि आप किस लेवल के यूनिट्स कंसीडर कर रहे हैं और फिर उनके जो है ना वो टेस्ट केसेस लिखते हैं। इससे पहले मैं इंटीग्रेशन टेस्ट में मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि ये जो डिबेट है कि एक्सटर्नल सर्विस को जो है मूव करना है या नहीं करना है, तो इसमें इंटीग्रेशन को भी अंडरस्टैंडिंग का दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसकी एक तो मरियम बात कर रही थी तो कंपोनेंट इंटीग्रेशन है। तो जब हम कंपोनेंट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यस आई एग्री कि कंपोनेंट्स में जो है ना तो एक्चुअल सर्विसेज ही रनिंग होंगी, तो आप अपने सिस्टम की जो आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट है आप उसकी करेक्ट टेस्टिंग कर पाएंगे। बट जो बाबर भाई बात कर रहे थे, इट कम्स टू व्हेन वी डू सिस्टम इंटीग्रेशन, जब हमारा सिस्टम रेडी हो जाता है और हम एक्सटर्नल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो फिर हम एक्सटर्नल सर्विस पे अपने टेस्ट स्यूट के अंदर कैसे रिलाई कर सकते हैं, तो वहां पे मेरे ख्याल में मूव करना ज्यादा बेहतर अप्रोच ही है। That's it. अच्छा, मेरा Alright. एक क्वेश्चन है सुहेल भाई। जी सर। वो इस तरह के जैसा लो टेस्टिंग और स्पाइक टेस्टिंग हम लोग किसी वेब ऐप पे कर सकते हैं, तो जो मोबाइल ऐप्स होती हैं उन पे कौन सी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की टाइप्स आएंगी एग्जैक्टली? उसके अंदर जो है वो आप सिमिलर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग वगैरह है, उस तरह की चीज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग आ जाती है, और इवन के आप जो अपनी इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग में आपकी सारी परफॉर्मेंस वाली चीज़ें आ जाती हैं कि आप एप्लीकेशन को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर चेक कर रहे होते हैं, मेमोरी को चेक कर रहे होते हैं कि कहीं आपकी मेमोरी ऊपर तो नहीं चली गई, ठीक है। मोबाइल के ऊपर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आपके पास सिंगल यूज़र होता है, तो वो लोड टेस्टिंग एज इट इज़ उस तरह से तो नहीं मैप हो रही होती, मगर ये है कि आप सिस्टम के रिसोर्सेज वगैरह और इस तरह की चीज़ों को नॉर्मल फ्लो में जो आप चेक कर रहे होते हैं ना, वो आप उस तरह की टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर। क्योंकि लोड जो है ना वो आता है जब आपके पास कंकरेंट यूज़र आ गए हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो ऐप वाली साइड पे जो परफॉर्मेंस टेस्ट का जो आप एक जो कैटेगरी आप परफॉर्म कर सकते हैं वो है आपका वॉल्यूम टेस्ट, कि आपके पास, बल्कि ये ऑल द टाइम होता भी है कि लेट्स से कोई आपकी एक ऐसी API सर्विस है जो कि आपको कुछ बहुत बल्क में डाटा प्रोवाइड कर देती है, कुछ आपको कुछ MBs में डाटा जो है वो उसने JSON डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया, तो कुछ जो है वो पार्सर्स जो होते हैं उसको पार्स करते करते ही जो है वो आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसमें जो है वो आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग में से जो पार्शियल जो चीज़ें हैं ना जो कि आपकी मल्टीपल यूज़र में नहीं लाई करती, ठीक है, सिंगल यूज़र में लाई करती हैं, वो वाली टेस्टिंग्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। All right, I think let's wrap up the session here. There are a lot of questions still flowing in, but yeah, we've run over time. So yeah, thank you, Atif and Sohail, for answering the questions and delivering such an informative session. Yeah, thank you everyone for participating and for listening in. We had a lot of participants today, actually, around 80 people tuned in. So yeah, good turnout. We will be announcing the most active participant for today shortly, and we will also be letting you know about the question of the day. So you will be receiving an email about that. For the question of the day, it will be relevant to the session, and the first person to answer the question correct will be our winner. Winners will be announced tomorrow. Yeah, so yeah, that's it. Thank you for, yeah, sorry. On a lighter side, we are trying hard how to give a gift or a prize in these days. So if anybody has good suggestions, please do share with us. हम बहुत सारी options देख रहे हैं. Should we send a pizza to your house or a burger to your house or a T-shirt? But it's not easy. So please share suggestions. It can be a carry for
voucher, like it can be a buying voucher as well for the Carrefour. So share some links with me, yaar. I am trying to find a good reliable Pakistani site which shares the vouchers. I mean, most of them look like fake to me. But if you know a good one or you have used one, please share with me. Sure, sure. अच्छा मैं लास्ट कमेंट जो है वो मेरे दो कमेंट्स होंगे। एक तो मेरा जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो है जो हम आंसर करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, उसमें मेरा जो है एक कमेंट ये है कि जब आप अपना आंसर दे रहे हों तो काइंडली थोड़ी सी अपना ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसमें जो है वो आप ऐड कर देंगे जो आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है वो MCQs में और हमने कुछ 4 के बजाय उसमें कुछ 8 ऑप्शंस डाल दिए। तो उसमें जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो आप अपनी जो है ओपिनियन जो है उसको डिस्क्राइब कर दें। और दूसरा एक पॉइंट मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि जो सैनिटी टेस्टिंग है उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई जो है ना वो हमारी डिस्कशन नहीं हो सकी Q&A सेशन में भी, क्योंकि जो मैं चीज़ प्रेजेंट कर रहा था और जो कॉन्फ्रेंस में मुझे सैनिटी के ऊपर जो डिस्कशन मिलती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मे बी हम लेटर किसी सेशन में जो है वो हम इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि सैनिटी के ऊपर जो है वो लोगों का जो डिफरेंट ओपिनियन है वो किस तरह से जो है वो ठीक बैठती है। फिल मैं आपकी उसके से एग्री करती हूँ, बिल्कुल ये एग्जैक्ट डेफिनेशन थी, जस्ट एक सजेशन थी, मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी उसके ऊपर। श्योर। I guess people have more questions like me, but अगर हम separately इसको डिस्कस कर सकते हैं मेरे ख्याल से सेशन में तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। आप अभी अगर करना चाहें तो यू कैन स्टे, नाउ द सेशन इज ओवर। आप लोग डिस्कशन जो मर्जी कॉल में रहना चाहे, दे आर मोस्ट वेलकम टू स्टे, बट आई थिंक मोस्ट पीपल विल गेट ऑफ नाउ। बट आप अभी डिस्कस करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। जी श्योर कोई अगर अभी जो है अभी अगर इस तरह के अगर के ऊपर जो है वो फ्लो के ऊपर कोई डिस्कशन वगैरह अगर हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आइडिया इन प्रेजेंटेशंस का यही है कि ना हम डिफरेंट लिटरेचर को स्टडी करें और कंबाइंड डिस्कशन से जो है वो हम कुछ फ्रूटफुल जो है वो चीज़ें जो है निकालें कि हम किस तरह से बेहतर वे में जो है वो हम ऑलरेडी टेस्टिंग वगैरह बेहतर कर रहे हैं, हम फ्लोज को भी ठीक से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जस्ट वो लेबलिंग वाली चीज़ है कि हम इस ये वाली पार्ट ऑफ टेस्टिंग को हम कुछ और लेबल दे देते हैं और उसको कोई और लेबल दे देते हैं, और ये ओवरऑल इंडस्ट्री में ये वाली कंफ्यूजन पाई जा रही है। ये नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस में जो है वो इस तरह की जो है वो हमारी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जो है वो कंसेंसस नहीं बन पा रहा। जी अगर अभी डिस्कस करना है तो काइंडली वो फ्लो डायग्राम फिर ओपन कर लें। ओके अच्छा जिसके अंदर हमने फील्ड टेस्टिंग का बताया था, मैं शेयर कर लेता हूँ। Let me add one thing. असद का जो क्वेश्चन था अभी, that is a valid question. If we talk about automation, तो यूनिट टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग में क्या डेफिनेशन होनी चाहिए कि किस पॉइंट तक जो है वो चीज़ यूनिट टेस्टिंग में आती है और किस चीज़ के बाद वो कंपोनेंट टेस्टिंग में आ जाती है। तो वो मेरे ख्याल में दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक